کہ ہمارے میر سعادت علی خان صاحب کی صدارت میں آواز نہیں فرینڈس آف حیدرآباد ایسوسیشن کی جانب سے ہم نے ایک اردو میگزین کو لانچ کیا ہے جس کا نام ہم نے اردو رکھا ہے. اس رسالے کے اجرا کرنے میں ہمارے فرینڈس آف حیدرآباد کے صدر میر سعادت علی خان صاحب کا بے حد کوشش، جستجو، دلچسپی، جو کچھ کہوں میں الفاظ کے لیے کم ہیں ان کے لیے. تو ان کی جستجو سے یہ کام سر انجام دیا گیا. پبلش تو بہت سے چیزیں ہو جاتی ہیں دنیا میں، مگر اس کو انجام پر پہنچانا یہ بہت بڑا کام. لکھ دینا، چھپوا دینا، پھر اس کو بیچنا، اس کا مستقل قائم رکھنا ایک بہت بڑا فن ہے. اس کے لیے ہم یہ کوشش کر رہے ہیں کہ آپ حضرات کے تعاون سے یہ کام مکمل ہو. اور اس جلسے کے لیے ہم نے ہمارے قدیم استاد ڈاکٹر میر صادق نقوی صاحب کو زحمت دی ہے. وہ اپنی صحت خراب ہونے کے باوجود میری درخواست پر وہ آنے کے لیے راضی ہوئے. اور میرے عزیز دوست ڈاکٹر منیر الزماں منیر کی کوششوں سے یہ جلسے کو ہم نے آراستہ کیا ہے. اور ہماری کمیٹی کے ایک معزز رکن محمد وسیع الدین صاحب بھی میری درخواست پر یہاں پر جلسے میں آئے ہیں. اور مشاعرے کے لیے ہم نے زحمت دی 10-12 شعراء کو، مگر یہاں 3-4 شاعر موجود ہیں جن میں معزز حسمت سہیل صاحب، ڈاکٹر افضال الرحمان صاحب افسر، ڈاکٹر منیر الزماں منیر، اور کون بول دیا صادق نقوی صاحب تو صدر جلسہ ہے. اور معزز ہمارے تمام جو حضرات ہیں ان سب کا میں اس جلسے میں خیر مقدم کرتا ہوں. جلسے کی کارروائی کے لیے سب سے پہلے صدر جلسہ ڈاکٹر صادق نقوی صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ اسٹیج پر تشریف لائیں. ہماری کمیٹی کے صدر جناب میر سعادت علی خان صاحب سے درخواست ہے کہ وہ بھی شائع نشین پر تشریف لائیں. اور شکاگو کے نامور شاعر جناب حسمت سہیل صاحب سے بھی درخواست کرتا ہوں کہ وہ بھی شائع نشین پہ تشریف لائیں. ڈاکٹر منیر الزماں صاحب سے بھی درخواست ہے کہ وہ بھی شائع نشین پر تشریف لائیں. ہم نے مسلسل 2 دن اخبار میں اطلاع دی ہے کہ ہمارا یہ پروگرام کو ہم نے فائنلائز کیا ہے. اس کے باوجود بھی شاید لوگوں کو اطلاع ہے یا اخبار نہیں پڑھتے ہیں. اخبار پڑھنے کی عادت ہمارے اردو داں حضرات میں ختم ہو گئی ہے. جن کو ہم فونوں سے یا ای میل سے یا جو روابط ہو کر سکے وہ حضرات یہاں تشریف لائیں. میں تمام حضرات کا
تہ دل سے خیر مقدم کرتا ہوں۔ ہمارا رسالہ نکالنے کا مقصد یہ ہے بنیادی طور پر کہ ہم ہمارے آنے والی نسلوں کو اردو سے آشناس کرائیں، جیسے کہ ابتدا سے الف سے یا تک ہم نے پہلے رسالے میں لیسن دیا ہے، اسی طرح ہر مہینے کے رسالے میں چھوٹے چھوٹے لفظوں سے ہم بچوں کو سکھانا چاہتے ہیں کہ وہ اپنے پیرنٹس اپنے بچوں کو گھر بیٹھے اردو اس رسالے کے ذریعے سے سکھا سکے۔ ہم اردو کو نہ صرف اردو میں لکھا ہے بلکہ اس کے الفاظ کو انگریزی میں بھی لکھا ہے، تاکہ جیسے الف سے آ ہے ہم نے ڈبل اے لکھ دیا ہے، بے کے لیے ہم بے ای لکھے ہیں تاکہ بچے سمجھ جائیں کہ یہ لفظ بے ہے، تے ہے، سے۔ تو یہ سمجھنے کے لیے پیرنٹس کی توجہ اس میں بے حد ضروری ہے۔ بغیر ماں باپ کی دلچسپی کے بچہ اردو نہیں سیکھ سکتا۔ بات چیت تو کرتے ہیں مگر لکھنا پڑھنا بھی اگر وہ آ جائے تو اپنے دینی بنیادی مسائل، چھوٹے چھوٹے مسئلے جو ہیں مذہبی، وہ تمام اردو سے واقف ہو کر آپ کی آنے والی نسلیں ایک مکمل انسان بن کر سماج میں زندہ رہ سکیں۔ کیوں انگریزی میں تو بہت ملتا ہے آپ کو، مگر اپنی زبان میں آپ کو اپنا مذہب ملنا بہت مشکل ہے۔ پرائے دیس میں ہم نے یہ کوشش کی ہے کہ جہاں تک ہو سکے اردو کی خدمت کی جائے، اور اس رسالے کا نام رکھنے میں میر سعد علی خان صاحب کی دلچسپی، کوئی اور نام میں نے ان کے سامنے رکھا تھا، انہوں نے کہا کہ نہیں اردو ہی نام رکھنا تاکہ سب کو معلوم ہے۔ آپ حضرات واقف ہی ہوں گے 1910 میں رسالہ اردو مولوی عبدالحق نے اورنگ آباد سے جاری کیا تھا۔ وہ ہندوستان کا نامور رسالہ تھا۔ وہ اپنی حیات تک جب یہاں تھے ہندوستان میں 1947 تک اس رسالے کو جاری کرتے رہے۔ جب وہ 52 میں یہاں سے پاکستان منتقل ہو گئے اور وہاں کا حال تو ہم کو واقف نہیں ہے۔ بہرکیف اس جو مشہور رسالہ اردو تھا اس کو پیش نظر رکھتے ہوئے بھی ہم نے اس لیے بات کی کوشش کی ہے کہ ہماری تاریخ، ہماری اردو کی قدامت اور اردو الفاظ کی اہمیت، ہمارے اردو کے جو ضرب المثل، اقوال زرین، یہ تمام چیزوں کو ہم اردو کے ذریعے سے آپ تمام حضرات کے سامنے اس رسالے کی مدد سے پیش کرنا چاہتے ہیں۔ اب میں ہمارے صدر صاحب میر سعد علی خان سے درخواست کرتا ہوں کہ اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ السلام علیکم۔ بڑی خوشی کی بات ہے کہ آج ہم جو ہے اردو میگزین کو اجرا کر رہے ہیں اور آپ تمام لوگ یہاں پر شریک ہوئے ہیں، اس کے لیے میں آپ لوگوں کا بہت بہت شکر گزار ہوں۔ میں آپ کو ہماری جو آرگنائزیشن ہے اوورسیز فرینڈس آف حیدرآباد کے بارے میں کچھ بتاتا ہوا چلوں۔ لائک مائنڈیڈ گروپ آف حیدرآبادیز نے اس کو چند سال پہلے اسٹارٹ کیا تھا۔ ہمارے آبجیکٹیو یہ ہے کہ ہم کمیونٹی کو ایک جگہ کنیکٹ کریں اور اردو کو پروموٹ کریں، حیدرآبادی کلچر، حیدرآبادی تہذیب، حیدرآبادی آداب، حیدرآبادی کھانے اور یہ تمام چیزوں کو پروموٹ کریں۔ تو ہم نے پوری کوشش کی اور ہمارے ایجوکیشنل پروگرام کے تحت ہم جو ہے کچھ اردو کے کلاسز بھی جو ہے یہاں پر اسٹارٹ کیے جو ABC میں چل رہے تھے۔ ایک دو بیچ بھی نکلے اس میں ہمارے ایجوکیشنل پروگرام کے تحت اردو کو پروموٹ کرنے کے لیے ہم نے کلاسز بھی چلائے، اور اب ہم ایک میگزین نکالے۔ ہمارا مقصد مین یہی ہے کہ اردو کو پروموٹ کریں، اردو اور ہمارے کلچر کو پروموٹ کریں۔ تو اس میں ہم کوشش کر رہے ہیں کہ یہ جو میگزین ہم نکالے ہیں اس وقت، اس کے ذریعے سے تو اس کے ذریعے سے ہم کمیونٹی کو کمیونیکیٹ کریں اور جو اردو کے لورز ہیں ان کے لیے ایک معیاری میگزین نکالیں۔ ہم کوشش یہی کر رہے ہیں کہ پچھلے سال پہلے ہندوستان میں آپ دیکھیں کہ میگزین نکلتا تھا 20ویں صدی اور شمع، تو ہم 20ویں صدی کے اسٹینڈرڈ پر امریکہ سے ایک میگزین نکالنا چاہ رہے تھے۔ تو ہم نے پوری تیاری کی اور آج اس کو لانچ کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ اس کو
زیادہ سے زیادہ اٹریکٹیو بنائیں، زیادہ سے زیادہ معیاری بنائیں، ادبی بنائیں، اس میں ساری چیزیں شامل ہو، ادب، پالیٹکس اور شاعری، فلم میں ہر چیز. تو ہمارے پروفیسر صاحب جو ہمارے پاس جو ہے اس وقت موجود ہیں، بڑے قابل آدمی ہیں، تو میں ان کی مدد لے رہا ہوں اس میگزین کو پروموٹ کرنے کے لیے، اردو کو پروموٹ کرنے کے لیے. تو یہ تو ایک کام ہو رہا ہے، ہم کر رہے ہیں. دوسرا اس کے علاوہ بھی ہمارے جو فورم کے ایکٹیویٹیز ہیں وہ یہ ہیں کہ ایک تو ایجوکیشن پروگرام ہے ہمارا، اس میں اردو کو پروموٹ کریں گے ہم. ایک کمپیوٹر کلاسز بھی ہم چلا رہے ہیں، اور اس کے علاوہ ہیلتھ کیئر ہے، فٹنس ہے، کاؤنسلنگ ہے، امپلائمنٹ ریفرل ہے، سینئر سٹیزن سپورٹ ہے، ڈومیسٹک وائلنس کے لیے بھی ہم اس پہ کام کر رہے ہیں. پھر اس کے علاوہ ہم میٹریمونیل سروسز پہ بھی کام کر رہے ہیں. سیاست حیدرآباد کے ساتھ مل کر ہم جو ہے میٹریمونیل سروسز یہاں بھی سٹارٹ کر رہے ہیں. سیاست والے حیدرآباد میں بڑی کامیابی سے دو بدو پروگرام چلا رہے ہیں، جس میں وہ غریب لڑکیوں کو، لڑکوں کو مدد کر رہے ہیں اور شادیاں کرا رہے ہیں اور اس میں ہیلپ کر رہے ہیں. تو وہی پروگرام ہم یہاں، میں نے زاہد علی خان سے ڈسکس بھی کیا تھا، انہوں نے کہا کہ بڑی اچھی بات ہے، آپ لوگ شکاگو میں بھی اس کو اسٹارٹ کیجیے. تو وہ پروگرام بھی ہم یہاں پر شروع کر رہے ہیں. انخری میں میٹریمونیل سروسز شروع کریں گے. تو سیاست کے تعاون سے یہاں سے اور سیاست کے ہم جو ہے مل کر اس کو چلائیں گے. اس کے علاوہ بھی آفٹر اسکول پروگرام بھی ہے. پھر ہم لوگ کچھ پبلک بینیفٹس کے لیے بھی جو ہے نا کچھ کام کر رہے ہیں. پھر کلچرل پروموشن بھی کر رہے ہیں. ایک بہت بڑا کلچرل پروگرام ہم یہاں کرنے والے ہیں، جس میں کافی جو ہے نا شعراء کو مدعو کیا جا رہا ہے. ایک مزاحیہ مشاعرہ ہے، کامیڈی شو ہے، اور کچھ ڈرامے ہیں جو خلیفہ قطب شاہ وغیرہ کے اوپر ہے. تو اس کو بھی پیش کیا جائے گا انشاءاللہ. رمضان کے بعد ایک پروگرام ہم ترتیب دے رہے ہیں، تو انشاءاللہ آپ کو اخبارات کے ذریعے بتا دیا جائے گا. اس کے علاوہ بھی ہم لوگ جو ہے ایک سیاست کا ایک پروگرام حیدرآباد میں چل رہا ہے. کپڑا بینک انہوں نے قائم کیا ہے، کلاتھ بینک. یہ کلاتھ بینک ایسا ہے کہ یہ لوگوں سے کپڑے جمع کرتے ہیں، اور جو غریب بچیاں ہیں، جو غریب دلہنیں ہیں، جن کی شادی ہو رہی ہے، جن کے پاس پیسہ نہیں ہے، تو اس کو یہ پیک کر کے اچھی طریقے سے ان کو دیتے ہیں، غریب بچوں کو، غریب دلہنوں کو. تو ہم بھی یہاں وہ اسٹارٹ کیے ہیں. میں کافی جمع کیا ہوں. ابھی جو لوگ 30 سال 40 سال پہلے جو یہاں آ گئے تھے، اور جن کے یہ شادی کے جوڑے اکثر عورتوں کے صرف سوٹ کیسز میں بنے پڑے ہوئے ہیں، وہ پہنتے تو نہیں، وہ پہنتے تو نہیں، صرف سوٹ کیسز میں رکھے ہوئے ہیں، تو وہ کلیکٹ کر کے ہم حیدرآباد بھیج رہے ہیں سیاست کو. تو اس کے لیے بھی ہم کوشش کر رہے ہیں. تو آپ حضرات سے بھی گزارش ہے کہ ڈونیٹ فار یور میٹریمونیل کاسٹیوم فار پور برائڈز ان حیدرآباد. حیدرآباد ہی نہیں، اور دوسری جگہوں پر بھی، جیسے اورنگ آباد ہے، یہ ہے انڈیا میں، اور بھی جگہوں پر بھیج رہے ہیں. تو یہ ہمارے فورم کے مقاصد اور غراض ہیں، اس پہ ہم کام کر رہے ہیں. تو سب سے پہلے تو اردو پہ کام ہو رہا ہے، پھر اور دوسری چیزوں پہ بھی کام ہم شروع کر رہے ہیں. انشاءاللہ آہستہ آہستہ اس کو آگے بڑھائیں گے. اس میں آپ کا تعاون چاہیے، جو ہے تعاون بہت ضروری ہے. بغیر کمیونٹی کی سپورٹ کے ہم کچھ کام نہیں کر سکتے. ہماری پوری کوشش ہو رہی ہے. ابھی اس میگزین کو نکالنے میں بھی ہم نے کافی بھاگ دوڑ کی، کافی کوشش کی. الحمدللہ اس کو ہم نے تیار کیا اور اس کو لانچ کر رہے ہیں. کوشش کریں گے آئندہ چل کر بھی جو ہے نا اس میگزین کو بہت اچھا معیاری رسالہ بنایا جائے امریکہ میں، کیونکہ امریکہ میں کوئی معیاری رسالہ نہیں. یہاں تو اخبارات وغیرہ کافی نکلتے ہیں، لیکن کوئی معیاری اردو پیپر نہیں ہے. تو ہم شکاگو سے اس کو لانچ کر رہے ہیں. اور میں ابھی اس کو کچھ تھوڑی اس رسالے کو ڈلاس میں، ہیوسٹن میں، واشنگٹن میں، نیو یارک میں اور نیو جرسی میں بھیج رہا ہوں. کافی لوگ اس کو منگا رہے ہیں وہاں پر، تو تھوڑے تھوڑے ہم بھیج رہے ہیں. سو انشاءاللہ آہستہ آہستہ جو ہے نا ہم اس کی تعداد بھی بڑھائیں گے. ابھی فی الوقت کو 200 کاپی ہم بنائے ہیں. تو دیکھنا چاہ رہے تھے کہ بھی اردو لورس کا رسپانس کیسا رہتا ہے. ہم کہتے ہیں کہ ہماری زبان تو اردو ہے، مادری زبان، لیکن آج آپ دیکھ رہے ہیں ہم پیپروں میں اخبارات نصب دیے ہیں، لیکن اردو لورس یہاں تعداد بہت کم ہے. یہ بڑا افسوس کا مقام ہے. تو آپ حضرات بھی جو ہے نا ہم سے تعاون کیجیے اور اس میگزین کو
सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो ये बहुत बड़ी सपोर्ट हमको भी मिलेगी, और इसमें आपकी जो यंग जनरेशन है, घर में बेटे बेटियाँ, नवासे नवासियाँ, पोतरा पोतरी, उनको आप बिठा के उर्दू सिखा सकते हैं। इसके अलावा भी हमारी एक वेबसाइट है friendsofhyderabad.org, उसके ऊपर भी आप उर्दू सीख सकते हैं। उर्दू की बड़ी अच्छी वीडियो उसके ऊपर है, और बच्चे बहुत आसानी से मुकम्मल उर्दू सीख सकते हैं। तो हम सबको मिलकर ये कोशिश करना चाहिए कि उर्दू को प्रमोट करें, खाली बोलने से नहीं, प्रैक्टिकली हमको कुछ करना चाहिए। तो हमने प्रैक्टिकली अपने तौर पर काम शुरू किया है। अभी आप हजरात का ताउन चाहिए, सपोर्ट चाहिए, तो आप सपोर्ट कीजिए इसे। इंशाल्लाह हम पूरी कोशिश करेंगे कि इसको आगे लेके जाएं। ओके, अस्सलाम वालेकुम। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर मीर सादत अली खान साहब का कि वो अपने ज़रीन ख्यालात से हमको नवाजे। हमारी कमेटी के एक मुअज़्ज़िज़ रुकन हैं जनाब मोहम्मद वसीउद्दीन साहब, उनसे दरख्वास्त करता हूँ कि 5 मिनट अपने ख्यालात का इज़हार करें। भाई प्रोफेसर साहब आप कुर्सी यहीं रखते हैं, कुर्सी ले ले ऊपर से। इधर ला दे, इधर आप खलील साहब इधर आ जाए, मैं अपनी कुर्सी के औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम हज़रात, मुझे दावत सुकून देंगे, मुझे इसकी कोई इत्तला नहीं थी, लेकिन मैं मेरे मोहतरम दोस्त का एहतराम करता हूँ। चंद चीज़ें मैं आप लोगों के सामने कहने की जसारत कर रहा हूँ। जैसे सदर मोहतरम जनाब सादिक साहब ने बहुत से प्रोग्राम की लिस्ट बताई है, उसको लेके चलना। फलाहउद्दीन के बहुत से प्रोग्राम उन्होंने बताए हैं, लेकिन सबसे अच्छा जो अट्रैक्टिव प्रोग्राम है, अगर आप सही मानों में उर्दू सिखाना चाहते हैं तो आप अपने बच्चों से उर्दू में बात करिए। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मेरे ग्रैंड चिल्ड्रन अब माशाल्लाह से 13 हैं। मैं आपसे ये सही आपके सामने वो अक्स पेश कर रहा हूँ, सही तस्वीर आपके सामने रख रहा हूँ। बड़ी मुश्किल है बच्चों को यहाँ उर्दू में बात करना, और हम फिर जो है ऑटोमेटिकली उनसे इंग्लिश में बात करना शुरू कर देते हैं। मैं आप लोगों से गुजारिश करता हूँ कि ये बहुत कठिन मसला है, और यहाँ का मसला नहीं है, इब्तदाई उर्दू से हुआ है मसला है। उर्दू का रेजोल्यूशन मैं आपके सामने बताऊँ तो आप हैरत में रह जाएंगे। अब्दुल हक ने लिखा है, मैंने नहीं बता रहा हूँ, अब्दुल हक की जो है नसर से मैंने ये बात आपके सामने पेश करने की जो है सादत हासिल कर रहा हूँ। वो ये कि मुस्लिम लीग ने रेजोल्यूशन जो पास किया था वो इंग्लिश में था। ये तो हमारा इब्तदाई दौर और उसकी इब्तदा ऐसे हुई है। इसी तरीके से अगर आप देखिए कि शहाबुद्दीन ने यूपी गवर्नमेंट के लिए जो अपील की थी वो ये थी, इंग्लिश में की। तो उस वक्त के मुलायम सिंह चीफ मिनिस्टर थे, उन्होंने कहा कि साहब आप उर्दू में लिखते या हिंदी में लिखते। और एक मिसाल मैं पाकिस्तान की पेश करता हूँ। अहमद फराज साहब यहाँ अमेरिका में थे, और अहमद नदीम क़ासमी को सक़ाफ़त इस्लामी के को इदारे से इस्तीफ़ा दिया पंजाब गवर्नमेंट से। बहरहाल जो भी मज़ाई कैफियत थी, तो उसको उन्होंने यहाँ पर जो अपील की थी वो इंग्लिश में की थी। शायरी तो उन्होंने पूरी उर्दू में की। आप ये देखिए कि ये हमारा किरदार है। मैं तनकीद नहीं कर रहा हूँ, मैं खुद उस तनकीद का जो है शिकार हूँ। आपसे सही कह रहा हूँ, ये खुलूस से दिल से कह रहा हूँ। मैं सादत साहब की जब मैं वो सपोर्ट करना चाहता हूँ, उनकी जो है मदद करना चाहता हूँ। तो चैरिटी बिगिंस एट होम। तो अब हम अपने बच्चों को उर्दू सिखाने की कोशिश करें। मैं ज़रूर कोशिश करूँगा, और मैं वादा करता हूँ, मेरा वक्त भी ख़त्म हो रहा है, मैं डिसिप्लिन का भी पाबंद हूँ, और मैं गुजारिश करूँगा आप हजरात से, मैं उस सदर साहब मेरे दोस्त मोहतरम इनसे बातचीत गुफ्तगू शनीद मेरी जो है हफ्ते में 2 मरतबा तो होती है, या हफ्ते में 1 मरतबा तो ज़रूर, तो मैं उनकी भी जो है सपोर्ट करूँगा।
اور آپ لوگوں کی سپورٹ مجھے بھی چاہیے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. بہت بہت شکریہ وسیع الدین صاحب. اب میں ہمارے شکاگو کے مشہور شاعر حسن سید صاحب سے درخواست کرتا ہوں ادباً کہ وہ 5 منٹ اپنے خیالات کا اظہار کریں. السلام علیکم. اور بھائی یہ بہت اچھا کام ان حضرات نے شروع کیا ہے. اور سفر ہے شرط مسافر نواز بہتیرے، ہزارہا شجرے سایہ دار راہ میں ہے. اور جو اردو کے لیے کہا، جو ہمارے پروفیسر صاحب نے اور جو آپ نے میر سعادت علی خان صاحب نے کہا، میں اپنی نظم کے 2 قطعے 2 بند سنانا چاہتا ہوں کہ ساتھ ہی اس کے مگر اٹھتی ہے دل میں ایک کسک، کیا نئی نسلوں کو بھی پہنچی ہے کچھ اس کی چمک، یا یہ بزم آرائیاں ہیں بس ہمارے عہد تک، فکر گر کوئی نہ کی ہم نے جو ان حالات میں، دفن ہو جائے گی یہ تاریخ کے صفحات میں، جب نہ ہوگا کوئی بھی اپنی زباں کا آشنا، یہ خزانہ علم و حکمت کا فنا ہو جائے گا. جیسے غالب نے کہا وہ حال ہوگا بزم کا، ہم کہیں گے حال دل اور آپ فرمائیں گے کیا، قول ہے اقبال کا تو عرصہ محشر میں ہے، پیش کر غافل عمل کوئی اگر دفتر میں ہے. تو صاحب یہ بہت ضروری ہے کہ ہماری نئی نسل اردو سے واقف ہو، ہمارے مذہب کا، ہمارے ادب کا، ہماری ہر چیز اردو ہی میں موجود ہے. کہاں تک ہم ٹرانسلیشن کریں گے اس کا انگریزی یا کسی اور زبان میں؟ اس لیے بہت ضروری ہے کہ یہ اردو، اور جو جیسی بات ہمارے دوست نے بتائی کہ صاحب یہ انگریزی میں پہلے لکھی آتی تھی، لیکن ایک بات اور میں آپ کو بتا دوں، پنڈت جواہر لال نہرو کا نکاح نامہ اردو میں لکھا گیا تھا. اور جو دلی میں جب یہ فسادات ہوئے تھے تو اس کی کرائم رپورٹ اردو میں لکھی گئی تھی. تو یہ بھی ہے. لیکن بہرحال اب ہم اردو سے بہت دور ہو رہے ہیں، اس لیے ہم کو بہت بھرپور کوشش کرنی چاہیے. اور پھر جب ایسے پروفیسر صاحب، بھائی ان کی میں نے کتاب پڑھی دکن کے محاورے اور روزمرہ، طبیعت خوش ہو گئی. اس قدر قابل آدمی، اس قدر کھوج کے ساتھ، اس قدر انہوں نے جانفشانی کے ساتھ اس کتاب کو تحریر کیا ہے. اپنے مضمون کی معرکۃ الآراء کتاب ہے. اس لیے مجھے پوری امید ہے کہ یہ رسالہ دن دونی رات چوگنی ترقی کرے گا. میری تمام ہمدردیاں اور تمام جو اس کے لیے مدد وہ شامل حال رہے گی. تھینک یو. بہت بہت شکریہ. حشمت سعید صاحب نے بہت اچھی باتیں ہم کو بتائی. اب میں رسم اجرا سے پہلے ہمارے میر سعادت علی خان صاحب ایک اردو کی نظم بترنم آپ لوگوں کو سنا دیں گے، کیونکہ وہ شاعر تو نہیں ہیں، اگر نہیں تو میں ان کو شاعروں میں شامل کرتا تھا. وہ بترنم اب آپ کو نظم سنا دیں گے، اس کے بعد رسم اجرا کی تقریر. ہمارے میر سعادت علی خان صاحب سے درخواست ہے کہ وہ اپنی نظم ترنم میں سنائیں. السلام علیکم. ایک نظم ہے، اس کا نام ہے اردو. اردو اپنی پیدائش سے لے کر آج تک جن حالات سے گزری اس نظم میں اس کو بیان کیا گیا. یہ اقبال صاحب ہے،
इंडिया के यूपी के इकबाल अशर हाँ वो नौजवान से हैं, बड़ी इसकी उर्दू है मेरा नाम। जी हाँ वही सुना। उर्दू है मेरा नाम मैं खुसरो की पहेली, उर्दू है मेरा नाम मैं खुसरो की पहेली, मीर की हमराज और गालिब की सहेली, दक्कन के वली ने मुझे गोदी में खिलाया, दक्कन के वली ने मुझे गोदी में खिलाया, सौदा के कसीदों ने मेरा हुस्न बढ़ाया, सौदा के कसीदों ने मेरा हुस्न बढ़ाया, है मीर की अजमत ने मुझे चलना सिखाया, है मीर की अजमत ने मुझे चलना सिखाया, उर्दू है मेरा नाम मैं खुसरो की पहेली, मैं दाग के आंगन में खिली बन के चमेली, मैं दाग के आंगन में खिली बन के चमेली, गालिब ने बुलंदी का सफर मुझको सिखाया, गालिब ने बुलंदी का सबक मुझको सिखाया, हाली ने मुरव्वत का सबक याद दिलाया, इकबाल ने आईना-ए हक मुझको दिखाया, इकबाल ने आईना-ए हक मुझको दिखाया, मोमिन ने सजाई मेरे ख्वाबों की हवेली, उर्दू है मेरा नाम मैं खुसरो की पहेली, है ज़ौक़ की अज़मत ने मुझे दिए मुझको सहारे, है ज़ौक़ की अज़मत ने दिए मुझको सहारे, चकबस्त की उल्फत ने मेरे ख्वाब संवारे, पानी ने सजाए मेरी पलकों पर सितारे, अकबर ने रचाई मेरी बेरंग हथेली, उर्दू है मेरा नाम मैं खुसरो की पहेली। हज़रत ये बहुत आखिरी बंद है, इसमें उर्दू आज जिन हालात से गुजरी है हिंदुस्तान में उसको बताया गया है। क्यों मुझको बनाते हो तासुब का निशाना, क्यों मुझको बनाते हो तासुब का निशाना, मैंने तो कभी खुद को मुसलमान नहीं माना, मैंने तो कभी खुद को मुसलमान नहीं माना, देखा था कभी मैंने भी खुशियों का ज़माना, देखा था कभी मैंने भी खुशियों का ज़माना, अपने ही वतन में हूँ मगर आज अकेली, उर्दू है मेरा नाम मैं खुसरो की पहेली। बहुत खूब, बहुत खूब। बहुत अच्छे भाई, बहुत तरन्नुम आपका माशाल्लाह। अभी आपने साजिद अली खान साहब से तरन्नुम उर्दू की गज़ल सुन रहे थे। हमने रस्म इजरा के लिए खान लतीफ़ खान साहब को मदऊ किया था, फ़ोनों पे कई मरतबा भी उनसे रब्ता पैदा किया, शायद उनकी सेहत कैसी है या मसरूफियत की वजह से नहीं आ सके, तो इस मुबारक फरीज़े को भी हमने सदर साहब के नज़र करते हुए आज के जलसे के जो सदर हैं प्रोफेसर सादिक नकवी साहब से दरख्वास्त है कि वो रस्म इजरा के बाद अपने सदारती कलमात से हमको नवाजें। रस्म इजरा की
अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़वातीन व हज़रात, गुफ्तगू एक नहीं दो उन्वानात पे करनी है और दामन वक्त में इतनी गुंजाइश नहीं है। तीसरी बात जो इस जलसे से मुंसलिक हो गई वो मेरी अपनी सेहत है। मैं कल तक दवाखाने में था, आज आपके सामने मौजूद, इसलिए कि मैंने वादा किया था। अगर सादिक नाम रख के वादा खिलाफी की जाए तो अपने वालिद की तरफ निगाह करनी पड़ती है। उन्होंने दिया था नाम सादिक और मेरा फ़र्ज़ है कि उसे पूरा करूं। हाजिर हुआ खिदमत में आपकी। मुख्तसर सी तकरीर, आगाज़ यहाँ से कि उर्दू ज़बान के मसाइल क्या हैं। यहाँ आलमी कॉन्फ्रेंस हुई थी उर्दू की न्यूयॉर्क में, और उसका एक सेशन था गैर ममालिक में उर्दू। उसकी सदारत मैंने की थी और काबिल मुक़र्रिरीन के बाद मैंने मुकम्मल तौर पर जायज़ा लिया था उर्दू का अमेरिका में। मैं वो तकरीर रिपीट नहीं करूँगा, सिर्फ उसके दो जुमले अर्ज़ करूँगा कि मेरे एतबार से, मेरी अपनी स्टडी के एतबार से, मेरे अपने शऊर और एहसास के एतबार से मुझे ऐसे लगता है कि अमेरिका में उर्दू बोली बनती जा रही है ज़बान में, जिसे बात होगी, जिसे बोला जाएगा, लिखा पढ़ा नहीं जाएगा। अक्सर बच्चे यहाँ के थोड़ा बहुत बोल तो लेते हैं, जिनके घर में उर्दू का चलन है, बोल तो लेते हैं, समझ भी लेते हैं, मगर थोड़ा बहुत, लेकिन न पढ़ना जानते हैं न लिखना जानते हैं। ज़बान के लिए पढ़ना और लिखना ज़रूरी है, जब कहेंगे कि ज़बान आती है। बोली और ज़बान का फ़र्क यही है। अल्लाह करम, कुछ फ़राइज़ ऐसे हैं जो कहे नहीं जाते मगर महसूस किए जाते हैं। उनमें से एक फरीज़ा ज़बान का है। हमारा फ़र्ज़ है, मेरा ये फ़र्ज़ है कि मेरे पोतों को, मेरे बेटों को उर्दू आए। ना आए तो मुझे हक़ नहीं है उर्दू पर तकरीर करने का। पहले खुद अमल करो, फिर हिदायत करो। मेरे दो बच्चे हैं, दोनों की तालीम मुकम्मल अंग्रेज़ी में हुई। मेरे बड़े बेटे की तालीम हैदराबाद पब्लिक स्कूल बेगमपेट में हुई और मेरे छोटे बेटे की तालीम ग्रामर स्कूल में हुई। दोनों अमेरिका में हैं 20 साल से, लेकिन दोनों इतनी उर्दू जानते हैं कि दोनों उर्दू के शायर हैं। मैं ये आपकी खिदमत आली मर्तबत में अर्ज़ कर रहा हूँ कि उर्दू पढ़ाने के लिए घर में उर्दू का माहौल बनाना ज़रूरी है। अगर घर में उर्दू का माहौल हो, जैसा मेरा है, मैं अपने पोतों से, नवासों से कभी अंग्रेज़ी में बात नहीं करता। छोटे बच्चे पूछते हैं, दादा डोंट यू नो इंग्लिश? मैं तो नहीं बेटे, दादा को नहीं आती अंग्रेज़ी, उर्दू में बात करो। माहौल बनाना ज़रूरी है। माहौल होगा तो खुद ही बच्चा सीखेगा, इंक्लाइन होगा उस तरफ। जिम्मेदारी है, ये जिम्मेदारी किसी को याद दिलाने की ज़रूरत नहीं, खुद ही एहसास होता है। मुझे हैरत होती है जब जलसों में कहा जाता है ये आपका फरीदा। मुझे अपना फरीदा मालूम है, लेकिन करूं क्या कि हो नहीं सकता है, कर नहीं सकता। करना चाहिए, होना चाहिए। अरबी पढ़ाएंगे, फारसी पढ़ाएंगे, उर्दू नहीं। क्या हो गया? एक बात बड़ी जुर्रत के साथ आपकी खिदमत में कहूँ, दो बातें हैं जो डिस्प्यूटेड हैं इंडिया में। मैंने बहुत तकरीरें की हैं इंडिया में, आज भी कर रहा हूँ। एक डिस्प्यूट यह है कि क्या उर्दू मुसलमानों की ज़बान है? हर मुसलमान मौलवी, हर मुसलमान स्पीकर, दानिश्वर सब ये कहते हैं जी नहीं है। और कुछ नॉन मुस्लिम शोरा का कलाम पेश करके कहते हैं देखो ये चकबस्त हैं,
मुसलमान नहीं थे मगर कैसा कलाम है। मैं कहता हूँ क्यों डर रहे हो? हाँ, मुसलमानों के बड़े हिस्से की ज़बान उर्दू, हमारा मजहबी लिटरेचर का 80% उर्दू ज़बान में है। बदकिस्मती से इस वक्त लाइब्रेरीज के फ्लोर्स पे पड़ा है। बड़ी ट्रेजेडी है, आपकी खिदमत में अर्ज कर रहा हूँ, हैदराबाद की आंखों से देख के अर्ज कर रहा हूँ, उस सिलसिले में प्रोटेस्ट करके अर्ज कर रहा हूँ, रिप्रेजेंटेशन करके अर्ज कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे सपोर्ट भी चाहिए। सिटी कॉलेज आखिरी दौर का सबसे मशहूर इदारा, उर्दू मीडियम था, 4 मीडियम में तालीम होती थी, मैं उसी स्कूल का तालिब इल्म। जामिया उस्मानिया उर्दू में तालीम होती थी, मेडिसिन भी उर्दू में पढ़ाई जाती। उसकी लाइब्रेरी में जाकर देखिए, मेन लाइब्रेरी, बहुत बड़ी बिल्डिंग है, सारी उर्दू और फारसी की किताबें फ्लोर पर फेंक दी गई हैं। मैंने प्रोटेस्ट किया चीफ लाइब्रेरियन से, मैंने कहा कि क्या कर रहे हो, ये फारसी और अरबी की बड़ी कीमती किताबें हैं जो तुमने फ्लोर पर फेंक दिया है, ये उर्दू की कीमती किताबें हैं जिसमें तालीम होती थी। उसने कहा क्या करूँ सर, कोई पढ़ने ही नहीं है आता, पढ़ी हुई है, बेकार इंसेक्ट खा रहे हैं। सिटी कॉलेज की लाइब्रेरी का भी ये आलम, उर्दू की सारी किताबें फ्लोर पर फेंक दी गई। आसफिया कुतुब खाना, नायाब किताबें उर्दू, फारसी और अरबी सब फ्लोर पर पड़ी है, कोई पूछने वाला नहीं। NTR ने, रामाराव ने अपने दौर में हम लोगों के रिप्रेजेंटेशन और हंगामा करने पर, यूनिवर्सिटी के लोगों ने, उसने एक ग्रांट दिया और एक कमेटी फॉर्म की और उससे कहा कि तुम इस कमेटी के जरिए डिसाइड करके पुराने शहर के किसी मॉन्यूमेंट, हिस्टोरी के मॉन्यूमेंट को फिर से रिपेयर करके अपडेट कीजिए। बादशाही आशुर खाने के मुताबिक मैंने तवील 60 सफ़े का मजमून लिख कर पेश किया और कहा कि इसकी रिपेयर होना चाहिए, उसकी हिस्टोरिकल वैल्यू, उसकी का आर्किटेक्चर, सब कुछ मैंने तफसील से लिखा, वो अलग टॉपिक है। उसमें मैंने ये लिखा कि सेंट्रल हॉल जो है, हर्राज खाना, मैंने कहा ये हर्राज खाना यहाँ से ख़त्म किया जाए, इस बिल्डिंग में कोई शॉप ना हो और इस हॉल को सेंट्रल लाइब्रेरी बनाई जाए ईस्टर्न लैंग्वेजेस के लिए, अरबी, फारसी और उर्दू। मैंने ये भी लिखा कमेटी को कि आपको ख़रीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि इतनी किताबें इस वक्त फ्लोर पर पड़ी हैं कि उन्हें सिर्फ वहाँ से शिफ्ट कर लिया जाएगा, तो इस लाइब्रेरी में सबसे बड़ी तादाद में किताबें होंगी। लेकिन कुछ हुआ नहीं। यूनिवर्सिटी है, मैंने 1 से ज़्यादा बार रिप्रेजेंट किया। हकीकतुस सलातीन मिर्ज़ा निज़ामुद्दीन अहमद की कीमती किताब मखतूता, जो सालारजंग कमेटी की तरफ से सादत अली खान ने शाये किया था, ऐसी कीमती किताब मुझे उस्मानिया यूनिवर्सिटी के लाइब्रेरी के फ्लोर पर मिली, पड़ी हुई थी नीचे। मैंने उठा लिया, मैंने कहा लाइब्रेरियन से कि ये किताब मुझे खरीदनी है। उसने कहा देखिए उस पर प्राइस होगी, तो मैं समझता हूँ 7 रुपये प्राइस थी, उस दौर की प्राइस है। मैंने कहा कि मुझे शर्म आ रही है कि इतनी कीमती किताब के 7 रुपये दूँ लाइब्रेरी को। उसने कहा नहीं, ये लॉ है, आपको इतना ही देना पड़ेगा। बात, बहुत सी बातें हैं जो आपके सामने करनी है, लेकिन क्या करूं, वक्त के दामन में कहीं इतनी गुंजाइश नहीं होती कि तफसील में जाए। दूसरी बात, जनाब, नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया 2 हो, लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का अप्रोच नॉर्थ के साथ अलग है, साउथ के साथ अलग है। मिसाल के तौर पर कुतुब शाही दौर के जो मखसूतात हैं वो सब फारसी में, एक भी मखसूते का ना अंग्रेजी में तर्जुमा हुआ ना उर्दू में हुआ।
और कुतुब शाही दौर हमारा फंडामेंटल पीरियड है, फाउंडेशन पीरियड है। कोई मखसूता नहीं हुआ। आंध्रा हिस्ट्री कॉन्फ्रेंस के कंबाइंड सेशन को मैं मुखातिब कर रहा था, मैं सदारत कर रहा था उसकी। मैंने पूरे सेशन को मुखातिब करके कहा कि बड़ी शर्म आने की बात है कि हमारी अपनी तारीख, जिसे पढ़े बगैर तारीख समझी नहीं जा सकती, उसका ना उर्दू तर्जुमा है ना अंग्रेजी तर्जुमा है, तो पढ़ोगे किस ज़बान में? फारसी 5 आदमी नहीं जानते, क्लासिकल पर्शियन है ये, बोलचाल की ज़बान है, 5 आदमी नहीं जानते हैदराबाद सिटी में। क्या कर रहे हैं हम लोग? खामोश बैठे। बहुत जाके सेंटर में मैंने कहा कि अगर आपको किसी आदमी की ज़रूरत है ये काम कराने के लिए तो ग्रांट आप दीजिए, मुफ्त में काम मैं करूँगा बगैर तनख्वाह के। नहीं माना। कहा डॉक्टर ऐसे है। मैंने कहा ऐसे वैसे कुछ नहीं, काम करना हो तो स्टार्ट करो। स्टार्ट को डिले करने का मतलब ये है कि दिल में इरादा नहीं है शुरू करने का। नहीं किया। हम हैदराबादी हैं ना, अफसोस होता है अब तो हैदराबाद की उर्दू जबान को फिल्मों में मजाक के लिए इस्तेमाल किया जाने लगा। तो जी हंसने हंसाने के लिए बड़ी जी, रोने रुलाने के लिए बहुत अच्छी है। अगर मैं शुरू करूं, सब हो रहा है और हम देख रहे हैं। आने वाली तारीख को हमने अपने पास ठहरा लिया है, उसे आगे नहीं बढ़ाना। तो हाँ, उर्दू तुम्हारी ज़बान है, यकीनन हमारा पूरा खजाना इल्म का उर्दू में है, क्यों शर्माएं? कहती ज़रूर कहेंगे। आपको हैरत होगी कि मैं उस्मानिया यूनिवर्सिटी का रिटायर्ड प्रोफेसर हूँ। कुतुब शाही दौर पर मेरे दौर से पहले या बाद हारून खां शेरवानी ने काम कराया, खुद काम किया। उसके बाद से खामोशी है। कुतुब शाही दौर पर किसी ने कुछ नहीं किया, लिखा पढ़ा गया, मज़ामीन लिखे गए, लेकिन पीएचडी बहुत कम हुआ होगा एक आध, मगर कम हुआ, बहुत कम। फिर मेरे दौर में आके 11 पीएचडी हुए, उसमें से 10 कुतुब शाही दौर में। मैंने कहा नहीं, हम कराएंगे, तुम नहीं कराए ठीक है। जब तक है, जब तक मैं रहा। मसला क्या था? आपको हंसी आएगी सुन के। यूनिवर्सिटी की बात कर रहा हूँ जो नहीं करना चाहिए बात बाहर, लेकिन उर्दू की मोहब्बत में कर रहा हूँ, तनकीद नहीं। सजेशन ये आया कि मेडिवल हिस्ट्री से मुगल हिस्ट्री को ख़त्म कर दिया जाए, मुगल्स की बजाय मराठास पढ़ाया जाए। मैंने मीटिंग में खड़े होकर कहा कि अगर ये किया गया तो सबसे ज़्यादा प्रोटेस्ट जो वो शख्स करेगा अपनी ज़िंदगी की कीमत पर, उसका नाम सादिक नकवी है। कैसे हटाओ? मुगल पीरियड हमारी हिस्ट्री का बेसिक पीरियड है, हमारी पहचान है, उर्दू की जान है। नहीं करने देंगे, नहीं करने दिया। आखिरी साल जब मैंने क्वेश्चन को रद्द किया मीटिंग में, तो डीन ने कहा 1 साल ठहर जाओ, नेक्स्ट ईयर सादिक नकवी रिटायर हो जाएंगे, फिर कर लेंगे। और हो गया। अब मराठास और मुगल हिस्ट्री अल्टरनेटिव से सिलेक्शन है, या ये पढ़ो या ये पढ़ो। ये कहाँ हो रहा है? उर्दू की दरसगाह में, हमारी दरसगाह में। कितने हैं हम उर्दू बोलने वाले? एक हाथ की उंगलियों पर गिन सकते हो स्टाफ में। हम सब रिटायर हो गए, हमारी जगह भरी नहीं है, फिल नहीं की गई। ये उर्दू पर कितना कहें, बल्कि मुझे तो हैरत होती है ये इल्मी फजाओं में जो अपने को सो कॉल्ड दानिश्वर होते हैं,
कुछ लोग होते हैं जिनकी अपनी नज़र में वो बड़े दानिश्वर हो, दूसरों की नज़र में नहीं। वो लोग अपने को उर्दू का शायर बोलते हुए शर्माते हैं। आपने कहा डॉक्टर आप तो उर्दू के शायर नहीं, कभी कभी तफरीह इत्तबा के लिए लिख लेता हूँ, शायर नहीं। क्यों, क्या हुआ है? शायर कहने से क्या हो जाता है? ये सब हो रहा है। मैं हवा की बातें नहीं कर रहा हूँ, जो देख रहा हूँ आंखों से, जिससे गुजर रहा हूँ वो कह रहा हूँ। हम तो जाने वाले हैं, लेकिन आने वाली नस्लों के लिए क्या करना है वो आपकी जिम्मेदारी है। सोचिए। अब रही रिसाले की बात, माफी चाहता हूँ, बहुत वक्त ले लिया, क्या करेंगे, बर्निंग टॉपिक है। दिल जलने लगता है तो ज़बान खुद ब खुद चलने लगती है और वक्त का एहसास नहीं होता। अर्ज कर रहा हूँ, मैं अर्ज कर रहा हूँ, रिसाले की बात आई। कुछ लोग होते हैं जो करते हैं और कुछ लोग होते हैं जो तनकीद करते हैं। देखिए, बहुत अहम बात है, अगर आप कोई अच्छा काम नहीं कर सकते, ये उर्दू का रिसाला निकला, आप नहीं निकाल सकते, तो तहजीब और अखलाक का इसरार ये है कि आप उसे अप्रिशिएट करें, कम से कम अपनी ज़बान चला के इसे रोकने की कोशिश न करें। रोकने की कोशिश करने से पहले आप कीजिए, मैं नहीं करता, ये नहीं, आप निकालिए, मैं साथ देता हूँ। नहीं निकाल सके तो फिर खामोश हो। आप कहेंगे सालिह नकवी तुम क्यों तकरीर कर रहे हो? इसलिए तकरीर कर रहा हूँ कि मैंने किया है ये काम। हैदराबाद से मेरा अंग्रेजी मैगजीन द नूर मेरा रिसर्च जर्नल था, जो 3 यूनिवर्सिटियों में सर्टिफाइड जर्नल था, रिसर्च जर्नल की हैसियत से सर्टिफाइड था। उसका नाम था द नूर। ये द नूर मैंने कभी बेचा नहीं, मैंने किसी से चंदा नहीं लिया, कभी इश्तिहार लिए, सिर्फ उतने जितनी ज़रूरत थी जर्नल छपवाया, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, सेक्ट एंड रिलीजन। इस्लाम पर किसी का भी रिसर्च टॉपिक पर मजमून हम छापते थे बड़ी एहतियात के साथ। इसमें नॉन मुस्लिम्स ने भी मेरा साथ दिया, बहुत अच्छे मज़ामीन नॉन मुस्लिम्स ने लिखे। मिसाल के तौर पर प्रोफेसर नारायण राव, इकोनॉमिक्स के जो प्रोफेसर हैं उस्मानिया यूनिवर्सिटी में, उन्होंने इकोनॉमिक सिस्टम ऑफ इस्लाम के नाम से बहुत अच्छा मजमून लिखा और उन्होंने बताया ज़कात के फ़ायदे क्या हैं। प्रोफेसर जोशी ने, जो डायरेक्टर आर्कियोलॉजी हैं इंडिया के, उन्होंने एक मजमून लिखा और बताया कि हिंदू तांत्रिक लिटरेचर में जो मंत्रास दिए हुए हैं उनमें रसूल करीम हज़रत अली और शहज़ादी कौनैन के वास्ते दिए गए। ये सब छपा है नूर में, 100 से ज़्यादा बार छपे हैं बात खास मज़ामीन। 25 बरस मैंने ये तन्हा ये काम किया है। मैं ही चपरासी था, मैं ही एडिटर था, सब काम मैं अकेला करता था। कागज़ खरीदना, प्रेस को जाना, प्रूफ रीडिंग करना, छपाना, छपाने के बाद पोस्ट करना। मैंने कभी नूर बेचा नहीं, मुफ्त यहाँ भी आता था। इस यहाँ की सेंट्रल लाइब्रेरी को 25 कॉपीज आते थे मेरे पास। इन्होंने मुझे ख़त लिखा कि आपके क्या पैसे होते हैं बताइए, हम भेजना चाहते हैं। मैंने कहा नहीं, हम इस्लाम बेचते नहीं, ये इस्लामिक रिसर्च जर्नल है, हम बेचते नहीं, हम तो मुफ्त देते हैं, पढ़ो, बस यही इसकी कीमत है। तो क्या मुसीबतें होती हैं मैं जानता हूँ, मैं तन्हा मैंने ये काम किया है। तो जर्नल के ऑफिस के चपरासी की क्या मुसीबतें हैं मुझे मालूम है, और एडिटर की क्या मुसीबतें हैं मुझे मालूम है। बहुत मुश्किल काम है, लेकिन अगर इस काम को आपने ऐसे किया
कि इसका स्टेटस बन गया। देखिए जर्नल दो किस्म के होते हैं। बस जर्नल ऐसे होते हैं मैगजीन कि उसमें मेरा अगर मेरी गज़ल छप जाए तो मुझे फख्र महसूस होता है कि फलां मैगजीन में मेरी गज़ल है। जाहिर आप सबूत मांगेंगे, जैसे निगाह किसी ज़माने में गज़ल छप गई तो शायर फख्र से कहता था, आप क्या समझते हैं मुझे, मेरी गज़ल निगाह में छपती है। जनाब मन मैगजीन खुद बोलता है अगर आपको समझने का अंदाजा है, किताब बोलती है अगर आप समझ सकते हो, निगाहें बोलती हैं अगर आंखों की जुबान पढ़ने का सलीका रखते हो। ऐसा मैगजीन निकालो। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि पहला मैगजीन ही आखिरी हिस्से में होगा, नहीं, मेहनत करनी पड़ती है, बरसों करनी। ये सोचे समझे बगैर करना पड़ता है कि दोस्त क्या कह रहे हैं, दुश्मन क्या कह रहे हैं। काम करो, होगा ये काम। इसलिए कि मेरे अजीज दोस्त यूनिवर्सिटी प्रोफेसर, हम उस्मानियन से, हम बहुत बोलते हैं लेकिन करते भी हैं। जितना बोलते हैं इतना नहीं करते, मगर उससे कम तो करते हैं, कुछ करते हैं, कुछ करते हैं। मैं बहुत बोल रहा हूँ लेकिन कुछ कर चुका हूँ। अब इस दौर में आके कुछ करना मुश्किल है। आंखों ने साथ छोड़ दिया, दांतों ने साथ छोड़ दिया, सेहत ने साथ छोड़ दिया, हर चीज ने साथ छोड़ दिया, मगर मैं जिंदा हूं। इसलिए कि मेरे दिल में एक आग है जो जल रही है। मैं देख रहा हूं कि जो तहजीब और तमद्दुन का दामन थामे हुए हमने अपनी जिंदगी गुजारी, वो दामन चार चार कर दिया जा रहा है, टुकड़े टुकड़े करके उसे बिखेर दिया जा रहा है, और हम देख रहे हैं। तो कम से कम बोल तो सकते हैं। तो जब तक जबान चल रही है बोलेंगे। और बोलते हुए जब देखता हूँ कि उर्दू के जलसे में सामईन की मुख्तसर तादाद है, तो समझ में आता है कि उर्दू के चाहने वाले भी इतनी मुख्तसर है, इतने ही थोड़े। लेकिन अरबाब करम, आखिरी जुमले कि आप लोगों के सामने बोलते हुए मुझे शर्म भी आती है। आपके सामने क्या बोलूं, क्या है जो आप नहीं जानते, जो मैं आपसे कहूंगा। आप सब कुछ जानते, बल्कि मुझसे बेहतर जानते, लेकिन आप खामोश हैं। तो किसी को बोलना चाहिए। तो आपकी सबसे मैं आ गया कुर्सी पे, ये सोच के कि चलो मैं बोलूंगा, आप सुने हो उसको ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं आपको एजुकेट कर रहा हूँ, जी नहीं। इस मेरी पूरी तकरीर में कोई ऐसी बात नहीं है जो आप नहीं जानते पहले से, सब जानते हैं। बोलते नहीं, या तो बोलिए या कीजिए। कीजिए तो लोगों को बताइए कि ये मुमकिन है, मैं कर रहा हूँ, तुम भी करो। जब हम सब मिलकर करने लगेंगे तो अमेरिका के सिटी शिकागो में एक हैदराबाद जन्म लेगा, जिसे हम कहेंगे ये अमेरिकन हैदराबाद है, जिसे पना लोगों ने लाया था, यहाँ आके इसकी परवरिश हुई। बहुत शुक्रिया, बड़ी नवाजिश। बेहद शुक्रिया। बेहद शुक्रिया प्रोफेसर सादिक नकवी साहब का, बहुत ही मालूमाती और अपनी दूरबीन ज़िंदगी 50 साल ज़िंदगी का तजुर्बों को हमारे सामने रखा। हम इसको हमेशा अपनी मशाल राह बनाकर इस पर अमल करने की कोशिश करेंगे। अब मैं शुक्रिया के फ़राइज़ अदा करने के लिए जनाब अफसर साहब को दरख्वास्त करता हूँ कि वो हमारे तरफ से इस जलसे के शुक्रिया अदा करें। सदर साहब का, डॉक्टर अशरफ साहब, डॉक्टर अफजलुर रहमान साहब अफसर।
अस्सलाम वालेकुम। भाई बड़ी जज्बाती तकरीर थी हमारे डॉक्टर साजिद नकवी साहब की, और मैं भी कुछ जो है थोड़ा सा शेक हो गया हूँ। और काफ़ी आप लोगों ने जो भी कोशिश की है, मैं भी आप लोगों के साथ ताउन करूँगा इंशाल्लाह, और इस काम को आगे बढ़ाना है। और जिन्होंने भी सब तकरीरें की है, शुक्रिया, बहुत बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, और इंशाल्लाह इस चीज़ को आगे बढ़ाएंगे। आपके आने का बहुत बहुत शुक्रिया। और उर्दू के लिए जो भी खिदमत कर सकते हैं, उर्दू के लिए जो भी काम कर सकते हैं, उसमें हाथ बटाओ। इस महफिल की जब ये स्पीचेस ख़त्म हो रही है तो मैं आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। और जितने भी डायस पे लोग बैठे हैं और जिन्होंने जितनी स्पीचेस की, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और ख़ास करके डॉक्टर साहब, आप जो इस मिशन को लेकर चल रहे हैं, आप जो इस मिशन को लेकर चल रहे हैं, इंशाल्लाह हम लोग आपके साथ हैं और हर चीज़ से काम करेंगे। जो हजरात उर्दू रिसाला ख़रीदना चाहते हैं सालाना, उसको हमने $5 हर महीना रखा है, साल के हमने $50 रखा है। वो आप हमको एड्रेस दे देंगे तो हम आपको फ्री में पोस्ट कर देंगे। कोशिश ये कर रहे हैं कि हर महीना पाबंदी से इस रिसाले को इजरा करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। जैसे कि काम का ऐलान करता हूँ, ज़रा रिफ्रेश हो जाइए, उसके बाद एक 10 मिनट के बाद मुशायरे की कार्रवाई।